السلام علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں لبآزاد، میں ہوں عادل چیلانی۔ ویوز میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرائم سین، اور یہ کرائم سین اس اندھوناک واقعے کا ہے کہ جو کراچی میں پیش آیا آج کے روز، اور جس میں آخانی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اسماعیلی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور دہشت گردوں نے ایک مذموم کارروائی کی ہے، اور نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر بہت غلط میسج کیا ہے پوری دنیا میں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ فریلی موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان فائنینشیل ہب ہے کراچی کہ جہاں پر یہ بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے علاوہ جو رینجرز ہیں، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت جو مل کر نیشنل ایکشن پلان کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کاروائیاں کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ 16 دسمبر 2014 میں کہ جب ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جب واقعہ پیش آیا تو پوری ریاست اکٹھی ہو کر، یکجا ہو کر انہوں نے ایک میسج دیا تھا دہشت گردوں کو، جس میں سیاسی طبقہ بھی شامل تھا، جس میں مذہبی طبقہ بھی شامل تھا، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے ایک میسج دیا، نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور یہ میسج دیا کہ دہشت گردوں کا ہر کونے پر جا کر انہیں ختم کیا جائے گا، اور پاکستان کو اس دہشت گردی کے ناسور سے ختم کیا جائے گا۔ ٹھیک 5 ماہ کے بعد آج یہ دوبارہ واقعہ پیش آیا ہے، اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، اس کے علاوہ سندھ حکومت پر اور وفاقی حکومت پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا نیا ایکشن پلان بنتا ہے، کیا نیا نیریٹو دیا جاتا ہے دہشت گردوں کے خلاف، یا وہی رسمی کاروائیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ سو آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ لوائقین کے ساتھ ہم اظہار افسوس کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ہم جائیں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، عام لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کریں گے، اور سیاسی جماعتوں کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ صرف مذمتی کریں گے یا اس سے بڑھ کر بھی وہ اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کی رائے ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے ایز پاکستانی، یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، آپ ایز پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے اس میں؟ سر افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی آدمی سیکیور نہیں ہے پاکستان میں، یہی کہوں گا بس۔ تو اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وفاقی حکومت، سندھ حکومت کیا کرے؟ عام بندے کی جو زندگی ہے وہ تو محفوظ نہیں ہے، عام بندہ عدم تحفظ کا شکار ہے، کراچی میں ویسے ہی ٹارگٹ کلنگ ہے، حالات خراب ہیں، اب اس کی وجہ سے مزید دہشت گردی کی جو ویوز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب عام بندہ کیا کرے؟ اب کیا کر سکتے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں، سیکورٹی گارڈ تو رکھ نہیں سکتا ہر بندہ اپنے ساتھ ساتھ، یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو کہیں بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان کی صورت میں یہ یزید ہی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر انسانیت ان میں ہوتی تو یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں، سیاسی حکومتیں، وفاقی صوبائی حکومتیں مذمت کر رہی ہیں، صرف مذمت کرنا کافی ہے؟ نہیں، ویسے تو آج اب اس ٹائم رینجرز بھی کام کر رہی ہے، پولیس بھی کام کر رہی ہے، اور مختلف ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں، اور ہم سب ان کی مدد کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں ان یزید بندوں کو پکڑنے کے لیے۔ اب ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں کہ یہ آخر بے غیرت لوگ ہیں کون جو اتنا بڑا سانحہ کر رہے ہیں، کبھی شکارپور میں کر رہے ہیں، کبھی پشاور میں کر رہے ہیں، کبھی کراچی میں کر رہے ہیں، کبھی پنڈی میں کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کیا کہیں؟ جناب، ہمیں تو بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے، ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بے قصور لوگ تھے، معصوم تھے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہ، یہ الگ تھلگ لوگ ہیں، پیسفل لوگ تھے، پیسفل بالکل پورا، کبھی ان کا ہم نے نہیں سنا۔ اس کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا کس کا ہاتھ ہے، کون کر سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی یہ گورنمنٹ کے نااہلی ہمیں نظر آ رہی ہے،
गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावे के लिए। कौन सी हुकूमत? सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत? ये सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये वजारत दाखिला की बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है, ये सब देख रहे हैं भाई, आए दिन हो रहे हैं वाकयात हो रहे हैं। पीछे बस अभी ये फोटो सेशन होता है, ये किया वो किया, और पकड़ते नहीं है, किसी को नहीं पकड़ा आज तक। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों नहीं पकड़ते, पता सब कुछ है। अंदरूनी खाना क्या हो रहा है इनको सब मालूम है, हर चीज़ का पता है, लेकिन ये शो नहीं करते हैं, कोई ट्रायल नहीं चलते हैं, किसी को पकड़ के अदालतों में नहीं लाए हैं। भाई इनको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे तो दूसरों को इबरत हासिल हो। ये ऐसा एक असूल सबके लिए रखे। हाँ ना, करना चाहिए ना, उसूल सबके लिए। यार मुसलमान है हम, एक कानून एक है, हर एक के लिए एक ही होना चाहिए ना। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मुझे बताएं कि मौजूदा पुलिस, मौजूदा रेंजर्स, मौजूदा वसाइल में रहते हुए दहशतगर्दों का सफाया कर सकते हैं? अपने पे आए, अगर सच्चाई पे आए कर सकते हैं। पीछे अगर इनको कोई रुकावट नहीं है तो, समझा ना। अगर कोई रुकावट है आगे से, कोई किसी का है, कोई किसी का क्या है, ये अलग जानते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमें समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। कुछ और यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार क्या कहेंगे, ये जो सफूरा चुरंगी पर ये जो वाकया हुआ है, अंधोनाक वाकया, क्या कहेंगे आप? आपकी क्या राय? मैं सर जी, मेरा राय ये है कि ये जो वाकया हुआ है, ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है इस्माइली कम्युनिटी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकया नहीं, इससे पहले भी बहुत वाकये हो चुके हैं कराची शहर के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर हो। हम बस अफसोस कर सकते हैं, और मेरी ये दरख्वास्त है कि हुकूमत से कि वो जल्द जल्द इन जो मुजरिमों को पकड़ के उनको सजा दे, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जी आप क्या कहेंगे? जी मेरा कहना है कि ये कोई मुसलमान तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, जिसने भी किया है कोई काफिर हो सकता है ये। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इनके कातिलों को जल्द अज जल्द जो है वो किरदार तक पहुंचा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर, और यहाँ पर जो सफूरा चुरंगी पर जो नेशनल ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है एपीएस के वाक़े के बाद, ठीक तकरीबन 5 माह के बाद ये एक और कौमी सतह पर ये जो सानिया हुआ है, और जिसकी मजम्मत तमाम तबका फ़िक्र ने की है, चाहे उसमें मजहबी बरादरी हो, चाहे उसमें सियासी बरादरी हो, आर्मी लीडरशिप हो, ISPR की जानिब से बयान आए। तो बहरहाल मजम्मत हमें तमाम लोगों की जानिब से नज़र आ रही है, तमाम सियासी जमातों की जानिब से नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि आगे चलकर क्या ठोस पेशरफ हम देख पाते हैं। इस वक्त मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर जो लवाहिकीन हैं वो मैयतें लेकर जा रहे हैं सर्द खाने, और तकरीबन 43 हलाकतें इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। एक बड़ा सैड अनफॉर्चुनेट वाकया है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा नकवी साहब, और देखते हैं कि वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये मुझे बताएं कि ये जो वाकया हुआ है सफूरा चुरंगी में, इसके हवाले से PTI का ऑफिशियल पर्सपेक्टिव क्या है? जी ऑफिशियल पर्सपेक्टिव जो अनऑफिशियल एक है, हमें मिनहसुल कौम रोने का मकाम है। हमारे निहत्ते शहरियों को कोई भून के चला जाए और हम लोग कुछ ना कर पाए, ना उनके कोई सराग मिलते हैं, ना कोई पकड़ा जाता है। ये कितनी बड़ी फेलियर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी पुलिस की और सिंध गवर्नमेंट की, के लोग इस तरह इस शहर के अंदर ऐसे वाकयात करके ऐसे आराम से निकल गए। फिरदौस साहब, ये फेलियर आप सिंध हुकूमत का कह रहे हैं? सिंध हुकूमत के अंदर जो रेंजर्स है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, या वफाकी सतह पर? मैं कह रहा हूँ जो लोग सिक्योरिटी के मामलात से सिंध के अंदर और कराची में जिन्हें इख्तियार है, वो सब इस वाक़े पे शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें। कंप्लीट फेलियर है। इससे कि जिस शहर के अंदर 1.5 साल से ऑपरेशन चल रहा हो और जिस शहर में 25 साल से रेंजर्स हों, अभी तक हम जो है इस शहर के अंदर से ऐसे एलिमेंट से पाक नहीं कर सकते। तो इससे मतलब यह है कि इस शहर की पुलिस तबाह हुई हुई है। उस पुलिस के पीछे तबाह होने में जिन जिन लोगों का हाथ है वो हुकूमत ही हो सकती है, आम इंसान तो नहीं हो सकता, अवाम तो नहीं हो सकती, जो अपोजिशन में पार्टीज बैठी हैं वो तो नहीं हो सकती। हर कोई चिल्ला रहा है कि पुलिस में से सियासी भर्तियां खत्म करो, पुलिस को प्रोफेशनल करो, पुलिस को बजट
दो, अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेते हैं, पुलिस वाले जो हैं वो मरते रहते हैं, उनके लिए कोई ना बुलेट प्रूफ गाड़ी है ना बुलेट वेस्ट है, और आप चाहते हैं कि वो काम करें। मतलब आप देखें तो ये शहर के रोज बरोज हालात कैसे हो रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है ना यहाँ लाइटें हैं कि रात के वक्त लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती इस शहर के अंदर, जो चाहे दहशतगर्दी का वाकया करके चला जाए। सड़कों के हालात देखिए, उस जगह में जहां मारा है वहां सड़क नहीं है। सर मुझे बताएं, कि आखान कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, उन्होंने क्या मैसेज दिया है, पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया? देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स पॉसिबल है। एक तो ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेक्टेरियन किलिंग, तो उन्हीं ने एक पैगाम तो वो एक सेक्ट को दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिहाज से जो लोग इस किस्म का पैगाम देते हैं, हम कहते हैं उन लोगों को जो सेक्टेरियनिज्म में बिलीव करते हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना लाजमी है। इसलिए कि हजारा कम्युनिटी हो, आखानी कम्युनिटी हो, शिया कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो या कोई माइनॉरिटी सेक्ट हो, क्रिश्चियंस हो या हिंदू हो, ये हर पाकिस्तानी को महफूज महसूस करना चाहिए अपने आप को। जो महफूज नहीं महसूस करता तो उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर आपने बताया कि सेक्टेरियन किलिंग के हवाले से ये मैसेज अभी फिलहाल हमें नजर आ रहा है। सर एपीएस का जो वाकया हुआ था 16 दिसंबर 2014 का, ठीक 5 माह पहले, तो उस वक्त पूरी स्टेट का एक रिस्पांस आया था, बड़ा तगड़ा रिस्पांस, जिसमें सियासी जमातें, वफाकी हुकूमत, मजहबी तबका, उसके अलावा मिलिट्री लीडरशिप, सब एक पेज पर नजर आए थे। एक तगड़ा रिस्पांस था और उस रिस्पांस के पेश नजर एक नेशनल एक्शन प्लान हमें नजर आया था। ये जो वाकया हुआ है, इसका भी रिस्पांस वैसा ही होना चाहिए या इस बार कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए? नेशनल एक्शन प्लान में कौन सा एक्शन हो रहा है? आमीन साहब आप बताइए क्या एक्शन हुआ सिवाय ज़रबे हर्फ के अलावा? किस जगह कौन सा एक्शन हो गया है? ये सिर्फ कागज तक प्लान है। कौन से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कितने केसेस जा चुके हैं? सिर्फ मजाक हो रहा है कौम के साथ। ये स्टेटस को की पार्टियों ने तबाह करके रख दिया इस मुल्क को। आप लोग किधर खड़े हुए हैं? आप लोग मीडिया रिसर्च तो करें कि क्या क्या हुआ है। किस नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क तो वसी हुआ है, मतलब तमाम चीजें बेहतर तौर पर नजर नहीं आई, लेकिन इंटेलिजेंसिया ने काम किसी हद तक किया है, कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा है। बट यूर राइट, कंप्लीट पिक्चर जो है वो बेहतर नहीं है। अब सर क्या करना चाहिए? मुझे मेरे लिहाज से नेशनल एक्शन प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी पॉलिटिसाइज पुलिस है उसको फारिग करना चाहिए था। पुलिस के जितने अफसरान हैं उनकी कॉम्पिटेंसी टेस्टिंग होनी चाहिए थी। आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट शुरू करनी चाहिए थी। स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स बनानी चाहिए थी। आपको उनके इक्विपमेंट के पब्लिकली पता चले कि हमने कितना इक्विपमेंट हासिल कर लिया है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लिस्निंग डिवाइसेस, जो कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो उनको बड़े वाज़ेह तौर पे होना चाहिए। लाहौर के अंदर जो है स्नैप चेकिंग हो रही होती है। आप निकले किसी भी इलाके से डिफेंस के, यहाँ कोई स्नैप चेकिंग नहीं है। पूरे कराची के अंदर कोई नाकाबंदी नहीं होती जिसके अंदर चेकिंग कर रही हो आर्मी या रेंजर्स। लाहौर में हो रही है कि नहीं? क्यों नहीं वाकया होता वहां? क्या ये कराची जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? यहाँ जो पुलिस का रेशियो है और लाहौर का और केपीके का जो रेशियो वो सेम है? नहीं है। सर मंजूर वसान साहब ने कहा कि कराची के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। आप उनके कमेंट को कैसे देखते हैं? अरे सबसे बड़ी साजिश खुद पीपीपी कर रही है। मैं उनके कमेंट पे क्या करूं? 7 साल से हुकूमत में करते कुछ नहीं है। करप्शन के अलावा और अपने घरों में दौलत में ले जाने के थर का वाकया हो तब यही कहते हैं कि साजिश हो रही है। अरे कहत में बच्चे मर जाए तो साजिश हो रही है। कोई एजुकेशन का निजाम खराब हो जाए तो साजिश हो रही है। तो अरे भाई तुम साजिश अवाम के खिलाफ खुद पीपीपी की गवर्नमेंट है, चोरों और लुटेरों की गवर्नमेंट। आप समझते हैं कि इस बड़े मैसाकर के बाद, इस बड़े इंसिडेंट के बाद जो सीएम सिंध हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? अगर गैरत हो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। इस्तीफा तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, नहीं है। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे फिरदौस नकवी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उनका मौक़िफ़ आपने जाना। बहरहाल जो लवाहिकीन है और जिनका ये नुकसान हुआ है आखान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, और जो मैयतें लेकर गए अपने घरों में और जिन्होंने दफनाई भी हैं, वो इररिपेयरेबल लॉस है और उस नुकसान को सिर्फ सीएम सिंध की जानिब से इमदाद देकर उसकी तलाफी नहीं की जा सकती। जो दहशतगर्द हैं उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।
इस हफ्ते हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ और कराची फिर लहू लहू हो गया और दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाई के तहत 40 से ज़्यादा हलाकतें हुई और दर्जनों जख्मी हुए अफराद और ख़ास तौर पर आखानी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। नौ इसके पीछे क्या मजमूम मकासद हो सकते हैं और सिंध हुकूमत का ऑफिशियल पर्सपेक्टिव तो हमने सुना कि मंजूर वसान साहब ने कहा कि इसमें कोई गहरी साजिश हो सकती है कराची के खिलाफ और हमने ये भी देखा कि इस हफ्ते आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आए और उन्होंने इजलास भी किया वज़ीर आला हाउस में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं, CPLC में रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक ला चुके हैं और ख़ास तौर पर ये जो वाक़या हुआ है इस पर अहमद चुनाय साहब अपना क्या व्यू रखते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चुनाय साहब ये बताइए, ये जो आखनी कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया है इस बार, आप क्या समझते हैं कि ये जनरली जो 16 दिसंबर की जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद एक और बहुत बड़ा मैसेकर है या इसको एक नेशनल ट्रैजिक इंसिडेंट के तौर पर नहीं लेना चाहिए, ये एक छोटा वाक़या? देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी वाक़या चाहे छोटा हो बड़ा हो कौमी सानिया होता है। इंसानी ज़िंदगी की जान और कीमत की कदर और कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये फिर ऐसा काम है कि जिसमें दहशतगर्दों ने एक बार फिर कराची को खून में नहलाने की साजिश की है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है, उस बस को टारगेट किया है। ये एक प्री प्लान टारगेट था कि जिसमें 6 लोग आते हैं, बस को घेरते हैं और उसमें चुन चुन के लोगों को मारते हैं और 55 लोगों की बस में अभी तक जो हलाकतों की तादाद है, जो शोहदा की तादाद है वो 43 से तजावज़ कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, एक कौमी सानिया भी है और ज़रब अज़्म में जो हमारे फ़ौजी जवान वहाँ पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नज़्म आज़मा है उनको एक और ज़्यादा जोश और वलवले के साथ। सर, पहले सवाल में मैंने छोटा वाकया इसलिए कहा कि APS का जो वाकया हुआ था उसके अगेंस्ट रिस्पांस स्टेट का बहुत बड़ा आया था और नेशनल लेवल पर हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टाइट किया और उनकी इंटेलिजेंसिया के नेटवर्क को वसी करने की बात की, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की और हमने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम दहशतगर्दों को चुन चुन कर टारगेट किया जाएगा और दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। ये जो वाकया हुआ है, आप समझते हैं इसका रिस्पॉन्स APS वाकये की तरह ही होना चाहिए या कुछ डिफरेंट होना चाहिए? मैं समझता हूँ डेफिनेटली वही रिस्पांस आएगा। हमारी फौजें जो हैं, हमारे पाक फौज के जो जवान हैं वो इसमें मामले में पूरी तरह बाखबर हैं। हमारी स्टेट जो है वो पूरी तरह बाखबर है। रेंजर्स और पुलिस मिलकर जो शहर में, इस शहर के दिफा के लिए, शहर में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम उन कुर्बानियों को भी अपने नज़र में रखें कि वो भी हमारे लिए कौमी सानिया है, वो भी हमारे लिए कौमी अलमिया है कि वो जवान जो हैं वो अपनी जानें जो है वो अपनी जानों का नजराना देकर, शहादत का घूंट पीकर हमारी जानों की हिफाजत में लगे हुए हैं। आज फिर कौम जो है वो इस साने के बाद ये पुरज़म है कि हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर कोशा हैं, अपनी जानें देने से भी दरेग नहीं करेंगे कि जब तक इस मुल्क से एक एक दहशतगर्द का सफाया नहीं हो जाता। सर, आम बंदा तो पुरअज़म भी है, मुत्तहिद भी है, वो कहता है कि दहशतगर्दों का सफाया होना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि सियासी हुकूमतें, ख़ासतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिनके पास 18वीं तरमीम के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंड्स हैं बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और वो आपको पता है कि वफाक से बड़ी स्टेट्स बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स और अरबों रुपए उन्हें पिछले 5 सालों में मिल चुके हैं। आप समझते हैं कि आम बंदा तो मुतहिद है, पुरअज़म नजर आता है, लेकिन सियासी हुकूमतों का रिस्पॉन्स उतना तगड़ा नहीं रहा सर, जो सूबाई हुकूमतें हैं, जितना APS के वाक़े के बाद हमें नजर आना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी हुकूमत हो वो भी आम बंदे ही हैं, हम में से ही हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए और इसी तरह हमारी फ़ौज भी हमारी अपनी फ़ौज है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दीगर इदारे भी हमारे अपने ही लोग हैं। तो इन सब का रिस्पॉन्स जो है वो यकसा है। बात यह है कि इट्स द मैटर ऑफ टाइम कि हम कैसी सारी चीज़ें कैलिब्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और किस तरह दहशतगर्दी का यहाँ से सफाया करते हैं। यहाँ पर जो दहशतगर्दी पीछे हो रही थी शहर में, आप टारगेट किलिंग देखें, मैं समझता हूं कि रेंजर्स ने और पुलिस ने एक ऐसा काम किया है कि जहां रोजाना 15 से 20 आदमी यहाँ लोलहान हो जाते थे, वहां एक आधा फिगर आ गया है और ये फिगर जो है वो मैं समझता हूं तकरीबन अब ना होने के बराबर रह गया था। तो ये नहीं सर, आप समझते हैं कदर कलामी की माज़रत, चुनाय साहब, आप समझते हैं रिस्पॉन्स APS के वाक़े जैसा ही होगा या कुछ मजीद उसमें एडिशन होनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तगड़ा करना चाहिए, अग्रेसिव पुलिस रिफॉर्म्स हम लाएं लोकल लेवल पर ताकि बेहतर तौर पर पेश रफ्त हो सके? बिकॉज बगैर पुलिस रिफॉर्म्स के हम कुछ नहीं कर सकते।
देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। पुलिस रिफॉर्म्स तो हर वक्त हमें चाहिए और हर वाक़े से हम सबक सीखते हैं। जहाँ APS का वाक़या हुआ, वहाँ स्कूलों में कैसे सेफ्टी मेजर्स किए जाएं, इसके लिए पूरा मुल्क जो है वो सरगर्म में अमल हो गया। यहाँ पर लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन थी और मेरा ताल्लुक भी मेमन कम्युनिटी से है। मैं समझता हूँ कि इस शहर में बशमूल मेमन कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ के 250 से ज़्यादा बसेज जो हैं वो सुबह लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए करामद होती हैं और सारी बसें जो हैं वो इसी तरह अपने टाइम पर रूट पे चलती हैं। ज़ाहिर है अब एक नई सोच आ गई है कि इनकी हिफाजत के लिए, इनको भी इस सफ़र को भी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। तो हुकाम आप क्या सजेस्ट करेंगे? पुलिसिंग के स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, लोकल लेवल पर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, उसे एक इंडिपेंडेंट फौज की तरह एक तगड़ा इदारा बनाने की ज़रूरत है, या कुछ और करने की ज़रूरत है? क्या हम करें? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हम इन वाक़यात से जो हमारे लूप होल्स हैं उनको कवर अप करने की बात करें। जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करना है, उस सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बात करें। जहाँ जहाँ जिधर हम समझते हैं कि अब ये दहशतगर्द यहाँ हमलावर होंगे, उन चीज़ों को हमको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है जो तमाम मुतल्लिका इदारे बशमूल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बैठ कर इस पर तबादला ख्याल करते हैं और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक प्रोग्राम में बेहतरी के लिए जो है वो एक लायल अमल लेकर आते हैं। आपकी बात सही है। APS के वाक़े के बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अमल दरामद जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। आप देखें, मदरसा रिफॉर्म्स आप देख लें, जो बैरूनी जो फंडिंग रोकने के हवाले से है, जो पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, वो हमें पिछले 5 माह में वो सब नजर नहीं आया। तो अब ऐसा क्या होगा? ये बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल होती हैं, पीछे से हो रही होती हैं और हर चीज़ में वक्त लगता है और इसके नताइज भी हम रातों रात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारा इदारा जो है वो अब चैन से बैठा होगा। हमारा हर इदारा बशमूल फौज जो है वो इस बात पे कोशा है कि उस नेशनल एक्शन प्लान के एक एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करें और क्या जा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल होती हैं, पीछे जो है वो बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है और उसके फिर दूररस नताइज जो है वो हासिल होते हैं। ठीक है चुनाय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अहमद चुनाय और उन्होंने कहा कि APS के वाक़े के बाद जो नेशनल एक्शन प्लान जैसा रिस्पांस हमने देखा पूरी स्टेट का, अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फौज और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मजहबी जो तबका है, सब यकजा हमें नजर आए और उन्होंने एक तगड़ा रिस्पांस दिया। और अहमद चुनाय साहब जो कि CPLC के चीफ भी रहे हैं और आजकल जो रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसी जैसा तगड़ा रिस्पांस इस बार हमें चाहिए और पुलिस रिफॉर्म्स, अग्रेसिव पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं बेहतर काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में दहशतगर्दों का सफाया जो है हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कराची में एक अंधोनाक वाकया पेश आया और दुनिया भर में इस अंधोनाक वाक़े की मज़म्मत की गई। UN में भारत ने मज़म्मत की और इसके अलावा सर आगा खान करीम ने मज़म्मत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी मज़म्मती बयानात आए। तमाम सियासी जमातें, मजहबी तबका फ़िक्र की जानिब से मज़म्मती बयानात आए हैं। कल एक अहम इजलास हुआ और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि कल अदम तंजीमों और दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा और अब देखना यह है कि फैसला कुन ऑपरेशन जो है उन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या किया जाता है कि जिन्होंने मासूम जानों को हलाक किया है। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने भी बड़ा अहम बयान दिया कि जिम्मेदार
اور معاونین کو بھی کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ بیانات پہلے بھی آ چکے ہیں. نیشنل ایکشن پلان بھی بنا اے پی ایس کے واقعے کے بعد پشاور میں, اور 5 ماہ بعد یہ واقعہ ہوا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ اسماعیلی برادری کو اٹیک کیا گیا اور معصوم جانوں کی ہلاکت ہوئی. بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انصار برنی صاحب, اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا پرسپیکٹو رکھتے ہیں. سر السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. وعلیکم السلام. برنی صاحب کیا کہیں گے کل کے واقعے کے حوالے سے؟ اندھوناک واقعہ, جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اب یہ بتائیں واٹ از دا وے فارورڈ, نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ مذمتی بیانات آگے, اس کے علاوہ یوم سوگ آج منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, صوبائی حکومتوں نے یوم سوگ کا اعلان کیا, سیاسی جماعتوں نے بھی ساتھ دیا, مذہبی طبقہ فکر سب نے مذمت کر دی. اب کیا کیا جائے سر؟ عادل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی مصلحتوں سے باہر نکلنا ہوگا, منافقت ختم کرنی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں کچھ ایسے رہنما ہیں, بلوچ رہنما, جن کے پاس انڈین پاسپورٹ ہیں. یار مجھے حیرت ہوئی اور میں بڑا حیران رہ گیا کہ اس ملک کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں. کیا ایکشن لیا تم نے؟ تم تو نام بتانے سے بھی خوف زدہ ہو یار. تم کیا کرو گے؟ تم میٹنگیں کر لینا اور یہ بیانات دے دینا دہشت گردوں کو ہم قلعہ کما کر دیں گے. قلعہ کما کرنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے. اگر تم ان کے نام کر سکتے ہو, قوم کو نام بتاؤ, ان کے قوم کو آگاہ کرو. اور یہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی مصلحتوں میں جائیں, آپ کھانوں کی ٹیبلیں سجائیں. یہ وقت یہ ہے کہ آپ ضرب عضب کا باقاعدہ سپاہی بنے, آپ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور آپ یہ بتائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. سر فوج نے تو کھل کے اس پر کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اور کھل کر اس پر بیان دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ملوث ہے اور بیرونی مداخلت جاری ہے اور اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. فوج نے تو کھل کر اس حوالے سے بیانات دیے. دیکھیے, میں فوج کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے کھل کے ایک بات کی ہے, لیکن ڈیفنس منسٹر جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا فوج کے خلاف بھی رہا ہے, انہوں نے قومی اسمبلی میں کچھ تقاریر بھی ایسے کی ہیں جو پاکستان کی افواج کے خلاف تھیں. تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے افواج کے خلاف کھڑے ہیں یا دہشت گردوں کے خلاف ہیں. اگر آپ دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور فوج یہ کہہ رہی ہے رام ملوث ہے, تو میرے بھائی آپ کو یہ بتانا ہوگا وہ رہنما کون ہیں جن کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہیں, وہ رہنما کون ہیں جو بھارت کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ انسانیت کا قتل ہے. اور جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل روح انسانیت کا قتل ہے, تو ہمیں انسانیت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے برنی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ یہاں سے جو شواہد ملیں گے آف کورس وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون ملوث ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. سر یہ بتائیں, نیشنل ایکشن پلان بنا اور سب نے کہا کہ جی ہم دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے, کسی کونے میں انہیں رہنے نہیں دیں گے اور اس ناسور کو ختم کریں گے. تمام بیانات پچھلے 5 ماہ میں ہم نے دیکھا. جب اے پی ایس میں اٹیک ہوا 5 ماہ بعد دوبارہ آپ کو لگتا ہے ہم وہیں پر کھڑے؟ میں خیال اس سے بھی پیچھے چلے گئے. اور اگر اب بھی ہم قوم نہ بنے, اگر ہم نے لال نیلے پیلے جھنڈے اتار کے صرف ایک سبز ہلالی پرچم نہ لہرایا, تو پھر ہم سب ختم ہو جائیں گے. ہمیں ایک قوم بننا ہے اور قوم بن کے ایسا مضبوط قوم بننا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم ہیں تو یار ہمیں مار کون رہا ہے؟ یہ سیکٹیرین وائلنس نہیں تھا. کل جو واقعہ ہوا یہ سیکٹیرین وائلنس نہیں تھا. وائلنس کرتے ہیں, میں ساری دنیا دیکھتا ہوں, انسانی حقوق کے حوالے سے سب جگہ جاتا ہوں. جو سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے وہاں بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے, وہاں ڈرائیور کو بھی نہیں چھوڑتے. یہاں ان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغام دینا ہے, اور اس کے پیچھے جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم نے کیا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہو انہوں نے کیا؟ یہاں تو ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے کیا. یہ تو تماشا لگ گیا ہے. اس کی باقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہے. سر سیکٹیرین وائلنس کے زمرے میں تو آتا ہے, خاص طبقہ فکر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. آخان کمیونٹی پیسفل کمیونٹی ہے جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں بڑا رول پلے کیا, پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشن, ہیلتھ میں بڑا کام کیا. تو سیکٹیرین وائلنس کے زمرے میں تو آتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, سیکٹیرین وائلنس وہاں ہوتا ہے جب پوری نسل ختم کرنی ہو. بچوں کو چھوڑا گیا, ڈرائیور کو چھوڑا گیا. یہ ملک دشمن ہے جو وہ تو بچ گئے نا, وہ تو قدرتی طور پر بچ گئے. نہیں, ان کو چھوڑا گیا, ان کو کہا گیا کہ اب بس لے کے چلے جاؤ. یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو دنیا میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آغا خانی محفوظ نہیں ہے, بوری محفوظ نہیں ہے, عیسائی محفوظ نہیں ہے, ہندو محفوظ نہیں ہے. میرے نزدیک پاکستان میں نہ کوئی عیسائی ہے, نہ یہودی ہے, نہ مسلمان ہے, نہ کرسچن ہے. پاکستان میں صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے, اور وہ میرے پاکستان کا ہم نوا. ٹھیک ہے برنی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام پاکستان میں
आम बंदे को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दे सकता है। रियासत आइन भी यही कहता है कि रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है कि आम शख्स के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यहाँ पर कराची में टारगेट किलिंग, हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी जारी है, तो आम बंदा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ज़्यादा हो चुका है माजी के मुकाबले में। 2 वाक़यात बता दूं। APMS का जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो आपने देखा होगा कि खाने की टेबल सजी हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था। हमारे मुल्क की मुसल्लह अफवाज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ उसी वक्त भागता है, ISI का चीफ उसी वक्त भागता है उन दुश्मनों को पकड़ने के लिए। अफगानिस्तान जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, और उनको फिर पता लगता है कि इसके पीछे कौन है। कल भी आपने देखा, कल का जो वाकया हुआ है उसमें भी वो सब इस्लामाबाद में थे। उन्होंने कहा टेबलें सजाओ, हंसी मजाक चल रहा था, और आर्मी चीफ कराची पहुंच चुके थे, और कराची पहुंचने के बाद फिर मुल्क दुश्मनों को तलाश कर रहे थे और कौम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो जमहूरियत है जिसमें सिर्फ मुंतखब होकर लोग बाहर से आ जाते हैं, तो यार ऐसी जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। उससे बेहतर वो डिक्टेटरशिप है जो कम से कम आपके मुल्क का दिफा कर सके, आपका दिफा कर सके। ठीक है सर, तो आम आदमी, फाइनली मुझे बताएं, आम आदमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ज्यादा है माजी के मुकाबले में? मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अब हर आदमी, आप देखिए, आप किसी से भी बात कीजिए, फौज की तरफ देख रहा है। मैं इंसानी हुकूक का हूँ, मैं फौज की, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा वो इख्तिदार में आए, लेकिन अगर इंसानों को बचाना है, अगर मुल्क को बचाना है, तो फिर यार हमें ये कम से कम निजाम नहीं चाहिए जिस निजाम को जमहूरियत का लुबादा ओढ़ के मुल्क दुश्मनों को हम पे मुसल्लत कर दिया। क़यामत सुगरा गुजर गई कराची में कि जब इस्माइली बरादरी पर अटैक किया गया, इस्माइली कम्युनिटी पर, जिसने पाकिस्तान की तहरीक में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। कल 45 अफराद जो हैं वो हलाक हुए और तकरीबन 20 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। ऑफिशियल स्टैट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इस वक्त मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगा हाजी हनीफ तैयब साहब का, और देखते हैं कि वो अपना इस बर्बरियत और इस जुल्म के हवाले से अपना क्या मौका रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे, ये जो ब्रुटैलिटी और ये जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बर्बरियत, दहशत, ब्रुटलिटी, अब सारे अल्फाज फेल हो गए हैं जो वाकया कल हुआ है। मुझे ज्यादा शिद्दत से इसलिए एहसास है कि मैंने बचपन और जवानी खारादर, मीठादर, ओल्ड टाउन में गुजारी है। बहुत करीब से इस बिरादरी के लोगों को देखा है। बड़े पुरअमन, कारोबार से, मुलाजमत से ताल्लुक़ है या हेल्थ एजुकेशन का काम कर रहे हैं, मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए ये लोग इन्वॉल्व कभी भी नहीं होते थे। ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों ने किया, यकीनन बहुत कभी इम्कान है कि बाहर का हाथ भी मुलविस हो, लेकिन इस्तेमाल हमारे ही दहशत गर्द हुए हैं। अब ये हुकूमत के लिए, सब के लिए चैलेंज बन गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो वादा कौम से किया गया है, लोगों को, दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी करें और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। यकीनन पाकिस्तान की माशी तरक्की के खिलाफ ये खौफनाक साजिश है जो बाहर से तैयार हुई है। ठीक है, तो सर दहशत गर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचाना एक जनरली बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना एक मुश्किल काम है। तो हमने ये बयानियां तो दे दिया, नेशनल नैरेटिव, कि हम दहशत गर्दों को छोड़ेंगे नहीं, इस नासूर को मुल्क से ख़त्म करेंगे। और कल भी हमने तमाम सियासी और मजहबी तबका फ़िक्र की जानिब से, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी ये बयानात देखें। इसको अमली जामा हम कैसे पहनाएंगे सर? हमारे पास वो स्ट्रक्चर, वो पुलिस, वो रिफॉर्म्स मौजूद हैं कि जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकें, इस टारगेट तक पहुंच सकें? आपने दुरुस्त फरमाया, ये बहुत ज्यादा मुश्किल टारगेट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पहले हम दहशत गर्दों को पालते रहे हैं, पनाह देते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं और बहुत ऊंचा प्रोटोकॉल देते रहे हैं। अब एक फर्क तो आया है कि पूरी हुकूमत तो कुछ भी नहीं, लेकिन फौज एज ए होल तमाम तर अपनी टेक्निकल नो हाउ के जरिए से ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू करके ऐलान कर चुकी है DG ISPR की तरफ से
کہ اب جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کو شیلٹر دینے والے لوگ ہیں، ان کو فنڈز دینے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اب وقت آ گیا ہے، اس میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. کل آرمی چیف نے بھی یہی کہا ہے کہ تمام جو دہشت گرد ہیں ان کے معاونین ہیں ان کو بھی کیفے گرفتار تک پہنچائیں گے. اس کا کام فوراً شروع ہونا چاہیے. میں جنرل راحیل شریف کو سلام پیش کر کے کہتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کے چپے چپے سے یہ دہشت گرد اور ان کے سپورٹر ختم ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. یہ اندوناک واقعہ ہم نے رپورٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کرائم سین کو بھی سیکیور کرنے کے حوالے سے وہاں پر ہمیں پولیس اہلکار نظر نہیں آ رہے تھے. بہرحال ایک بڑا اندوناک واقعہ، اور انفیکٹ یہ تماچا ہے پاکستان کی سیاسی حکومتوں پر اور پاکستان کے جمہوری نظام پر کہ ایک عام بندے کی، ایک عام شخص کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تمام حکومتیں کیا کر رہی ہیں. پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے اور اس سے اربوں روپے کے پروجیکٹس وہ کھڑے کر رہے ہیں، لیکن عام بندے کی جو زندگی ہے، عام بندے کا جو جان و مال ہے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایفیکٹو اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. آرمی پبلک اسکول کے اندوناک واقعے کے بعد تقریباً ٹھیک 5 ماہ بعد یہ ایک اور بڑا سانحہ ہم نے دیکھا جو آغا خان کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اور سیکٹیرین کلنگ کی گئی. اور اس حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سندھ حکومت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور وفاقی حکومت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بشمول فوج اور دوسری تمام حساس ادارے مل کر انہیں دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچانا پڑے گا اور اپنے شیئرڈ آبجیکٹیوز کے لیے اسٹریٹجی مرتب کرنی پڑے گی. اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان ہم نے دیکھا، لیکن نیشنل ایکشن پلان کی ایفیکٹو جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. سو آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومتوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ یوٹیلائز کہاں کیا ہے. اور انفیکٹ ہم نے دیکھا کہ جو ہاسپٹل تھا جہاں پر میتیں لائی گئیں وہاں سی ایم قائم علی شاہ صاحب نے وزٹ کیا اور ایک بہت بڑا اسکواڈ ان کی سیکیورٹی کے لیے موجود تھا، لیکن عام بندے، عام شخص اور آخانی جو مرے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہیں تھا. بس کے اندر جا کر دہشت گردوں نے سب کا صفایا کر دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پولیس ریفارمز کہاں ہیں، پولیس کا ادارہ کیا کر رہا ہے. رینجرز کا ادارہ جو یہاں پر 20-25 برس سے کام کر رہا ہے اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان میں جو فورن فنڈنگ کی بات کی گئی تھی وہ فنڈنگ کہاں تک ہم نے روکی، اس پر کیا ہم نے کام کیا ہے، اس کی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. اسی طرح جو مدرسہ ریفارمز جو ہم نے لانی تھی اس کا کوئی آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں آیا. اور جو پولیس ریفارمز ہم نے لانی تھی، غرض یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے آلموسٹ سارے جو ایجنڈاز تھے وہ ہمیں اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور شاید ابھی بھی ہم 16 دسمبر 2014 کی جگہ پر کھڑے ہیں اور بیک ٹو اسکوائر 1 کھڑے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. اور ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی اسٹریٹجی مرتب کرنی ہے. بہرحال دہشت گرد وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں ہوئے، وہ اپنی مضموم کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو نقصان اٹھا رہی ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی تمام مشینری بروئے کار لانا ہے جن کو، وہ ہیں سیاسی حکومتیں، وہ شاید وہ کام نہیں کر رہی جو کہ انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال سیاسی جماعتوں نے مذمتی قراردادیں دیں، مذمتی بیانات دیے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، متحدہ مجلس عمل ہو، یا اس کے علاوہ دوسری تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے مذمتی بیانات دیے ہیں. کیا ہے، قائم علی شاہ صاحب نے کچھ امداد کا اعلان کیا ہے 5 لاکھ مرنے والے کے لیے اور تقریباً 2 لاکھ روپے زخمی ہونے والے کے لیے، لیکن یہ ناکافی ہے. صرف امداد دینے کھڑے نہیں کر سکتے کہ ان کا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا. ویزیبل ایکشن لانے کی ضرورت ہے اور وہ ویزیبل ایکشن تبھی ہوں گے کہ جب سندھ حکومت، وفاقی حکومت، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے تمام ادارے ایک پیج پر آ کر ویزیبل ایکشن کریں اور افیکٹو کریں اور ایک عام شخص کی، ایک معصوم پاکستانی کی زندگی
زندگی کو تحفظ فراہم کر سکیں اور جو کہ آئینی طور پر ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. بہرحال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس اندوناک واقعے کے بعد کہ آیا ہم ایک بہتر ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہماری سمت جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں, دوبارہ سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے. وہ سب کو اب سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اپنے ریسورسز کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اور ایک عام بندے کی زندگی کو کس طرح محفوظ بنانا ہے. بہرحال آغا خان کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور irreparable لاس ہے, وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور سر آغا خان کریم نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا ہے تمام لواحقین کے ساتھ. بہرحال اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کیا کرتی ہیں. سو ویئرز, آج کے دن ہم نے خاص طور پر اسی ایشو پر فوکس کیا. رپورٹ آپ کے سامنے ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آؤٹ کم کیا آتا ہے تمام مذمتی بیانات کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا اور خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کا. عام لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اسی بات پر مرکوز ہیں. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے, آپ دیکھتے رہیے لب آزاد.